Hello everyone, so in this video we will continue our discussion with the topic leptospirosis. So without any further ado, let's get started. Now moving on, we will discuss about the pathogenesis. So simply after the entry into the body through the cutaneous and the mucosal aberrations or in utero, after a period of a bacteremia, the organism localize in the kidney where they multiply in the lumen of the proximal convoluted tubule and excreted in the urine that leads to the acute and the chronic nephritis. The disease manifests in the different ways in different species, acute and subacute form, a chronic or abortion form or an occult form. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis of the leptospirosis infection. So simply after the entry into the body through the cutaneous mucosal aberration or in utero route, after a period of a bacteremia, the organism localize in the kidney where they multiply in the lumen of the PCT and excreted in the urine leads to the acute and the chronic nephritis. देखो मैंने आपको बताया था कि जो लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है वो किन किन रूट से स्प्रेड हो सकता है. सो इट कैन स्प्रेड वाया म्यूकोसल एब्रेशन, ठीक है, इट कैन स्प्रेड वाया स्किन और द क्यूटेनियस रूट, और इट कैन स्प्रेड वाया इन यूट्रो फ्रॉम मदर टू द फीटस. ठीक है, अब क्या हुआ, किसी हेल्दी एनिमल में ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, तब क्या करेगा, बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एनिमल में इन्वेड करके अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा एंड डेवलप अ कंडीशन ऑफ अ बैक्टीरियमिया. इसका मतलब क्या हुआ, अब जो बैक्टीरिया है लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन का वो ब्लड में पहुंच चुका है. ठीक है, अब जब बैक्टीरियमिया की कंडीशन डेवलप हो गई तो ये जो पॉजिटिव एजेंट है ऑफ द लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन, इट विल स्टार्ट लोकलाइजिंग इन द किडनी और वो मल्टीप्लिकेशन शुरू करेगा अपना इन द ल्यूमन ऑफ द पीसीटी और द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया जब अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर चुका है इन द पीसीटी और द ल्यूमन ऑफ द पीसीटी, देन विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग इन द यूरिन. अब वो बैक्टीरिया जो है उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होने लगेगा, जिसकी वजह से एक्यूट और क्रोनिक नेफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. ठीक है, so simply after that disease manifest in different ways in different species, acute, subacute, chronic, abortion and an occult form. So देखो मैंने आपको बताया था कि जो लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है डिफरेंट एनिमल्स होंगे तो डिफरेंट तरीके के आपको क्लिनिकल साइंस और पैथोलॉजिकल लीशंस देखने के लिए मिलेंगे. आपको एनिमल में एक्यूट और सब एक्यूट फॉर्म का इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, क्रोनिक टाइप का इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, अबॉर्शन फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं जिसमें क्या होगा, जो भी फीटस होगा वो अबॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑकल्ट फॉर्म देखने के लिए मिल सकती है जिसमें क्या है, एनिमल में ब्लडी स्टूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो सिंपली from the species to the species, the clinical manifestation और the clinical signs और you can say pathological lesion जो है वो बदलते रहेंगे. ठीक है, moving on in the pathogenesis of the leptospirosis infection, the certain serovars are well adapted to their host reservoir host and remain in the kidney for the long period and serve as a source of infection to the member of the same species or accidentally infected species in which it is less well adapted accidental host but in which it causes the serious disease. For example, the rat infected with the serovars of the Leptospira icterohemorrhagica shed the organism in the urine for the life without any clinical signs, but when the dog exposed to the infectious rat urine produces the serious disease in the dog. So देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन, तो उसी में आगे बढ़ते हैं. तो सिंपली सर्टेन सीरोवार्स आर वेल अडेप्टेड टू देयर होस्ट and hence they are known as reservoir host and remain in the kidney for the long period of time and serve as a source of infection to other member of the same species. So देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि जीनस लेप्टोस्पायरा के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज होती है जो कि पैथोजेनिक है, दैट इज लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, जिसके पास काफी ज्यादा नंबर में सीरोवोर और सीरोटाइप्स पाए जाते हैं. तो कुछ सीरोवॉर्स ऐसे होते हैं जो कि होस्ट के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, होस्ट में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं एंड हेंस दैट होस्ट इज नोन एज रिजर्वायर होस्ट. तो रिजर्वायर होस्ट में क्या होता है, ये जो पैथोजेनिक स्पीशीज के सीरोवॉर है वो किडनी में रहते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल शेड आउट एंड एक्ट एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. अब ये इन्फेक्शन किसमें होगा, टू द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है, after that accidentally they may infect a species in which it is less or well adapted and hence act as the accidental host but in which it cause the serious disease. So देखो भाई, ये जो रिसाइडिंग सीरोवॉर थे ऑफ द पैथोजेनिक स्पीशीज, ये क्या करते थे, अपने सेम स्पीशीज के मेंबर को इन्फेक्ट करते थे.
पर एक्सीडेंटली क्या होता है कि ये किसी और स्पीशीज के मेंबर को भी इन्फेक्ट करते हैं जहां पे वो वेल अडेप्टेड नहीं है, एंड हेंस दैट पर्टिकुलर स्पीशीज एक्ट एज द एक्सीडेंटल होस्ट। और जब भी एक्सीडेंटल होस्ट में इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो वहां पे सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। सो सिंपली रैट्स आर इन्फेक्टेड विद द सीरोवॉर इक्टेरोहेमरेजिका एंड शेड द ऑर्गेनिज्म इन द urine for life without any clinical sign, but when the dog exposed to the infectious rat urine produces the serious disease in the dog। देखो अभी जो रैट है ये लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेमरेजिका सीरोवॉर के लिए रिजर्वायर होस्ट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरोवॉर नॉर्मली रैट में स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब जब ये स्टोर्ड होगा एक रिजर्वायर होस्ट में तो क्या करेगा, रिजर्वायर होस्ट इस पर्टिकुलर सीरोवॉर को शेड करेगा। तो रेड क्या करता है, इस पर्टिकुलर सीरोवॉर को अपने यूरिन में शेड करता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर, एंड इट विल नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ क्लिनिकल साइंस। ठीक है, लेकिन जब इन्फेक्शियस रेड यूरिन में जिसमें ये लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेमरेजिका का सीरोवॉर प्रेजेंट है, अगर इसके कांटेक्ट में कोई डॉग आ जाता है तो डॉग के केस में क्या होता है, सीरियस डिजीज डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे डॉग क्या है, एक्सीडेंटल होस्ट, और रेट क्या है, हमारा रिजर्वायर होस्ट। ठीक है, now moving on we will discuss about the clinical signs। so simply the clinical sign depend upon the species and the serogroup of the leptospira। after that the extensive hemorrhage and the hemolytic anemia or the jaundice can be noticed। it can also cause the reproductive disorder, and if the organism reaches to the uterus it led to the abortion। it also develop the chronic and the recurrent iridocyclitis conditions। सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल साइंस ऑफ द लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन। सो सिंपली इट डिपेंड अपॉन द स्पीशीज एंड द सीरो ग्रुप ऑफ द लेप्टोस्पायरा। देखो मैंने आपको बताया था कि जीनस लेप्टोस्पायरा के अंदर सिर्फ एक ही पैथोजेनिक स्पीशीज आती है, दैट इज लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन्स, जिसके पास काफी ज्यादा सीरोवॉर्स और सीरो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हमारे पास कोई एनिमल है, मान लो एनिमल 1 और एनिमल 2, इन दोनों में अगर लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन होता है तो दोनों के ही अंदर आपको जो क्लिनिकल साइंस और पैथोलॉजिकल लीशंस देखने के लिए मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एनिमल में आपको डिफरेंट तरीके के टाइप के लीशंस और साइंस देखने के लिए मिलेंगे, एंड दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द स्पीशीज एंड द सीरो ग्रुप ऑफ द लेप्टोस्पायरा। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी द एक्सटेंसिव हेमरेज, hemolytic anemia and the jaundice in the suffering animal। जो भी एनिमल लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन से सफर करेगा वहां पे आपको एक्सटेंसिव लॉस ऑफ ब्लड देखने के लिए मिलेगा, हीमोलिटिक अनीमिया देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होता है, सिंपली द रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज मोर देन रेट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन जिस रेट से हो रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एज वेल एज यू विल ऑल्सो सी द जॉन्डिस इन द सफरिंग एनिमल। ठीक है, after that you can also see reproductive disorders। if the organism reaches to the uterus it will lead to the abortion। देखो लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन में क्या है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंड अगर लेप्टोस्पायरोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो किसी भी प्रेग्नेंट एनिमल के यूट्रस में पहुंच जाता है तो इट विल लेड टू द अबॉर्शन ऑफ द फीटस। ठीक है, moving on you can also see the chronic or recurrent type of the iridocyclitis। सिंपली क्या है, जो भी एनिमल लेप्टोस्पायरोसिस से सफर करेंगे वहां पे आपको क्रोनिक और रिकरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस देखने के लिए मिल सकता है। इरिडोसाइक्लाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस। ठीक है, so now moving on we will discuss about the canine leptospirosis। coming to the etiology or the causative agent of this infection, it can be Leptospira canicola, which is the most common causative agent, and the reservoir host for this causative agent varies from dog to dog। the next causative agent for the canine leptospirosis is the Leptospira icterohemorrhagica, and the dog will acquire the infection from the rats। The next causative agent is the Leptospira griphotyphosa, which is a sporadic type of the causative agent। so देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस, एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द etiology और द causative agent। so simply the most common causative agent for the canine leptospirosis infection is the Leptospira canicola। और इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए रिजर्वायर होस्ट की तरह कौन काम करते हैं, डिफरेंट डॉग्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट फॉर दिस
canine leptospirosis infection can be Leptospira hemorrhagica and the dog acquire the infection from the rat. अगर कोई डॉग किसी रैट पे फीड करता है तो ये लेप्टोस्पायरा हेमरेजिका बैक्टीरिया उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट कैन बी लेप्टोस्पायरा ग्रिफोटाइपोसा व्हिच इज ए स्पोरेडिक टाइप ऑफ द पॉजिटिव एजेंट। सिंपली जो डॉग में कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमनली तो लेप्टोस्पायरा कैनिकुला की वजह से होगा, और काफी सारे केसेस आपको लेप्टोस्पायरा हेमरेजिका के देखने के लिए मिलेंगे, बट लीस्ट कॉमन केसेस जो हैं वो आपको लेप्टोस्पायरा ग्रिफोटाइफोसा के देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से डॉग्स में कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस की कंडीशन डेवलप हुई। ठीक है, so now moving on, we will discuss about the clinical signs of the canine leptospirosis infection. So simply you can notice the acute disease like condition like fever, hemorrhages, bloody diarrhea, vomiting, jaundice, increased erythrocyte sedimentation rate, albuminuria, severe debilation and death. You can also notice the per-acute disease like condition, few signs that are other than the hemorrhages which are common in puppies. You can also notice the subacute or the nephritic form of the disease, which is characterized by the typical signs of the uremia include uremic breath, ulcerative stomatitis, vomiting often bloody, weight loss, dehydration, coma and death. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.